دانیہ بے چینی کے عالم میں بستر پر بیٹھی کھڑی پر نگاہیں جمائے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کبھی وہ گھونگھٹ کے اندر ہو جاتی تو کبھی گھونگھٹ پلٹ کر گہری گہری سانس لینے لگتی۔ عجیب مصیبت ہے، پتہ نہیں بابا نے کس سے شادی کروا دی۔ رات کے 2 بجنے والے ہیں اور اب تک کمرے میں آنے کا ہوش ہی نہیں۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھنے لگی۔ اسے مہندی سے عشق تھا اور اپنی شادی کے موقع پر اس نے بھر بھر کر مہندی لگوائی تھی۔ پیروں پر بھی پوری طرح مہندی رچی ہوئی تھی اور وہ مسکرائی اور سوچنے لگی کہ اس کا شوہر اسے دیکھ کر نہ صرف اس کا عاشق بن جائے گا بلکہ اتنی حسین مہندی اور اس کے رنگ پر فدا ہو جائے گا۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ آنے والے کو مہندی سے ہی الرجی تھی۔ دھیرے دھیرے کھڑی کی سوئیاں سرک رہی تھی۔ دانیہ کی بے چینی کا عالم بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن اس کا شوہر تھا کہ کمرے میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے گلے میں پہنا ہار ڈھیلا کیا اور گھونگھٹ کو پوری طرح ایک طرف اتار کر رکھ دیا۔ اے سی چلنے کے باوجود اتنی بھاری جوڑے میں اسے بے انتہا گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور اس کا شوہر نہ آیا تو وہ اٹھ کر شاور لے گی اور کپڑے تبدیل کر لے گی، لیکن اسی لمحے کمرے کے دروازے پر کھڑک کی آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور گھونگھٹ ڈال لیا۔ ویسے تو وہ شرمیلی ہرگز بھی نہ تھی، لیکن ابھی وقت اور موقع ایسا تھا کہ خود بخود شرم اور حیا کے پردوں میں ڈھکنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے لمحوں میں کیا ہوگا۔ ایک ایسا شخص جس کا اسے صرف نام ہی معلوم تھا، اب اس کی زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا، اور اپنے بابا کے سمجھانے پر اس نے یہ شادی کی تھی کیونکہ وہ بے انتہا بیمار تھے اور اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ بس اسی لیے اس نے بنا لڑکے کو دیکھے ہی حامی بھر لی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا نے اس کے لیے ایک پرفیکٹ میچ ہی تلاش کیا ہوگا۔ قدموں کی آہٹ اس کے نزدیک بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دل کی دھڑکنیں اسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ زارون جو کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیٹھے دلہن کو دیکھ کر ایک مدھم سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اپنی ماں کی مرضی پر اس نے بخوشی ان کی پسند کو قبول کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مہندی سے رچے ہاتھوں پر پڑی تو اسے ایک عجیب قسم کی چڑ ہونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا اور اس نے اپنے ماما کو خصوصاً ہدایت کی تھی کہ دلہن کو مہندی لگانے سے منع کرے، اور جہاں تک اسے معلوم تھا اس کی ماں نے ایسا کیا بھی تھا، لیکن پھر بھی دلہن کے ہاتھوں پر مہندی رچی ہوئی تھی۔ اس کے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو سے کہیں زیادہ اسے مہندی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ اپنی دلہن کے قریب آیا۔ مہندی پر اس کا نام رچا ہوا تھا اور اپنا نام دیکھ کر ضابطہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، البتہ مہندی کی خوشبو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی گئی۔ مجھے مہندی کی خوشبو سے الرجی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے ساختہ کہہ اٹھا تھا، کیونکہ اب اسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اسے الٹی آ جائے گی۔ اس کی آواز دانیہ کے کانوں میں پڑی تو وہ کچھ لمحے کے لیے چونک گئی۔ یہ آواز، یہ لہجہ بہت جانا پہچانا سا تھا، لیکن اس لہجے سے کہیں زیادہ تکلیف حسین لفظوں سے ہوئی تھی۔ وہ تو مہندی کی عاشقہ تھی اور سامنے والے کی طبیعت مہندی کی خوشبو سے ہی ناساز ہو رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، پلیز برا مت مانیے گا، لیکن ماما کو کہا تھا میں نے کہ آپ کو منع کرے مہندی لگوانے کے لیے۔ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ چہرے پر رومال رکھتے زارون نے بڑی بیزاری سے بات پوری کی اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ مخملی ٹپیا نکال لایا جسے وہ کافی دیر سے سنبھال رہا تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی۔ یقیناً ساری زندگی کے لیے اسے اپنے اس شوق سے محروم ہو جانا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ شادی سے پہلے اگر ایک بار لڑکے سے ملاقات کر لیتی تو کیا چلا جاتا، کم از کم اس کی پسند اور ناپسند کا علم تو دانیہ کو ہو ہی جاتا۔ مگر اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب تو شادی بھی ہو چکی تھی اور وہ دلہن بن کر بھی بیٹھی تھی۔ زارون کی نگاہیں چاروں طرف گھومتے ہوئے اس کے دوریا ہاتھوں پیروں سے ہوتی اس کی گردن پر جا ٹھہری۔ گھونگھٹ کے پار سے اس کی سراہی دار گردن نظر آ رہی تھی جس پر سرخ رنگ کا یاقوت جڑا سیٹ مزید غضب ڈھا رہا تھا۔ زارون کا دل اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ وہی دانیہ کے جذبات میں بھی عجیب سی ہلچل مچنے لگی۔ ہاتھوں پیروں کو اپنے آپ میں سمیٹتی وہ اس وقت بے تحاشا نروس ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے آپ میں ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، لیکن یہ وقت ہی ایسا تھا کہ اس کے اندر جھجک اور حیا سمٹ آئی۔ زارون نے بنا کسی تاخیر کے مخملی ڈبیا کو کھولا، ڈائمنڈ رنگ دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔
इन खूबसूरत हाथों पर तो ये रिंग वाकई बहुत जचनी थी। ये सोचते हुए उसने दानिया की तरफ बढ़ाई रिंग, और दानिया ने हाथ बढ़ाकर तोहफा वसूल किया। और जैसे ही उसने रेडियंट शेप की वो डायमंड रिंग देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसे यही शेप बहुत पसंद थी और बहुत आहिस्तगी से उसने थैंक यू बोला। उसके इस थैंक यू पर ज़रून एक लम्हे के लिए ठठक आया। उस आवाज़ को वो पहले भी सुन चुका था और यही सोचते हुए ज़रून ने घूंघट पलटा दिया और अगला लम्हा उन दोनों पर कयामत ढा गया। तुम दोनों के मुंह से बेसाख्ता एक ही लफ्ज़ अदा हुआ। ज़रून झटका खाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और वहीं दानिया ने घूंघट उतार कर एक तरफ फेंक दिया। आंखों में नफरत और हकारत के शोले बुलंद हो रहे थे और ज़रून का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। मुठियाँ भींचते वो नफरत से दानिया को देख रहा था जो उसके नाम पर सजी सवरी बैठी थी। दानिया को तो ऐसा शौक लगा कि मज़ीद अल्फाज उसके हलक में ही दम तोड़ गए। जिस इंसान से उसने सबसे ज़्यादा नफरत की थी वही उसका शौहर बन बैठा। उसे अपने आप पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने ज़रून गाजी से निकाह कर लिया और उसे खबर भी ना हो सकी। तुमने जानते बूझते मुझसे शादी की है ना? दानिया ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा लफ्ज़ों में बयान किया। मेरा दिमाग ख़राब है जो तुम जैसी जंगली बिल्ली और काली चुड़ैल से शादी करूँगा। शक्ल देखी है आईने में। तुमसे नफ़रत ज़रूर करता हूँ, लेकिन इस नफ़रत में अपनी ज़िंदगी को जलाकर राख नहीं कर सकता। यकीनन ये तुम्हारा किया धरा है। तुमने जानते बूझते मुझसे शादी की है ना? तुम्हें क्या लगा था कि बस बहुत आसानी से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी? लेकिन याद रखना, मैं ज़रून गाजी हूँ। इतनी आसानी से तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं हूँ। ज़रून का लहजा भी आग उगल रहा था। ओह मिस्टर, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए कि तुमसे मैं बदला लेने के लिए तुमसे शादी ही कर लूँगी? मेरे बाबा ने तुम्हें पसंद किया। काश कि मैंने शादी से पहले एक बार तुमसे मुलाकात कर ली होती तो तुम्हारे मुंह पर दोबारा थूकना भी पसंद न करती। वो भी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। गले में पहना खूबसूरत नेकलेस उतार कर एक तरफ फेंक दिया। बालों की जूड़े को गुस्से से खींचकर खोला और ज़रून की आंखों में आंखें डालकर उसी के अंदाज में जवाब दे दिया। दानिया के जुमलों पर ज़रून दिल मिला उठा। तेजी से उसके करीब आकर उसको बाजू से सख्ती से जकड़ लिया। क्या कहा तुमने? मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं तुम्हें? रियली? मत भूलो कि अब तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो और मेरे कमरे में। मेरी क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या औकात, ये तुम्हें बहुत जल्द अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ज़रून की आंखों में नफरत के अंगारे भड़क रहे थे जिन्हें दानिया ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। हलक में थूक निगलते हुए उसने खुद को संभाला और झटके से अपना हाथ ज़रून की गिरफ्त से छुड़वा लिया। क्या लगता है तुम्हें जोर ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? भूल गए हो क्या कि किस तरह मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई थी? इसीलिए मेरे सामने अपनी हैसियत की बात ना करना, वरना ऐसा हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। सारी हिम्मत समेट कर दानिया ने उसे माजी की तरह फिर धमकाया। ओह आई सी। ज़रून की आंखों में तंज और जहर भर गया। लगता है कि उस दिन की तरह फिर पुलिस बुलवाने का इरादा है। चलो बुलवा पुलिस, कर लो ये शौक भी पूरा। लेकिन क्या बताओगी उन्हें कि तुम्हें अपना शौहर पसंद नहीं, या फिर ये कि तुमने अपने बाप के कहने पर आंखें बंद करके मुझसे शादी कर ली? क्या जुर्म साबित करोगे इस बार तुम मेरा? पिछली बार तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम पर मैं बहुत रुस्वा हुआ था, लेकिन इस बार अगर इल्ज़ाम सच्चा हुआ तो रुस्वा भी तुम ही होगी। ज़रून के लबों पर एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट फैली और दानिया का सांस सीने में ही अटक गया। वो पूरी तरह बदला लेने के लिए तैयार खड़ा था और दानिया के पास कहने को शायद कुछ भी ना बचा था। वाकई वो अब उसके निकाह में थी, चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और खुद ब खुद आंखों में नमी तैरने लगी। लेकिन वो ये नमी ज़रून को दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए हलक की घुटन को दबाते हुए वो एक कदम और ज़रून के करीब हो गई। अपना हर शौक पूरा करके देख लो ज़रून गाजी। दानिया शाह के आगे ज्यादा दिन ठहर नहीं सकोगे। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। जिस तरह यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई थी ना, इसी तरह तुम्हारे खानदान में तुम्हें 2 कोड़ी का करके रख दूंगी, क्योंकि तुम्हारी यही हैसियत है। आंखों में आंखें डाले दानिया ने ज़रून गाजी को चैलेंज करने की गलती कर दी। वो भूल गई थी कि इस वाक़े को अब 2 साल गुजर चुके थे और उन 2 सालों में ज़रून गाजी पूरी तरह बदल चुका था। वो अब वो कमज़ोर नौजवान न रहा था जिसे यूनिवर्सिटी में दानिया ने आसानी से ज़ेर कर लिया, बल्कि अब वो एक ताकतवर बिजनेसमैन और उसके सर का साया उसका मिजाजी खुदा बन चुका था। दानिया उसे नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि ज़रून ने अचानक उसे खींचकर अपने बाजुओं में जकड़ लिया।
कमर से थामते हुए उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया और दानिया का चेहरा ज़ारून के इतना करीब था कि वो उसकी सांसों की हिद्दत तक महसूस कर सकती थी। सांस रोककर वो ज़ारून की आंखों में झांकने लगी, जहाँ जज्बात का एक तूफान ठाठे मार रहा था। तुम आज भी वैसी की वैसी हो, सिर्फ अपनी कहने और सुनने वाली। ज़ारून की आवाज़ मध्यम मगर गूंजती हुई थी। अपने हिस्से की बात तुम कह चुकी हो, अब मेरी भी सुन लो। उसने दानिया को और सख्ती से अपने सीने से लगा लिया। न चाहते हुए भी दानिया ने उसके कंधों पर हाथ रख दिए ताकि खुद को संभाल सके। दोनों के दरमियान अब शायद ही कोई फासला बचा था। दानिया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सांसें बेतरतीब हो चुकी थी, जिनकी आवाज़ ज़ारून आसानी से सुन सकता था। लेकिन उस पल वो दानिया की खूबसूरती में बहकने वाला न था। अगर वो आज कमज़ोर पड़ जाता तो ये लड़की सारी ज़िंदगी उसके सर पर सवार रहती। इसीलिए उसे आज की रात ही दानिया को उसकी हकीकत और हैसियत का आईना दिखाना था। ना अब तो मुझ पर हाथ उठा सकती हो, न पुलिस बुलवा सकती हो, और सबसे बढ़कर यह कि मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती। ज़ारून का लहजा पुख्ता और जमी हुई नफरत से लबरेज था। जितना शोर मचाओगी उतनी ही तुम खुद को बेवकूफ़ करोगी दानिया। आज हमारी शादी की रात है और खामोशी से खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरी जुमला कहते हुए ज़ारून के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी थी जिसे देखकर दानिया के तन बदन में आग लग गई। ज़ारून के अल्फाज का मतलब वो बखूबी समझ सकती थी। उसने फड़फड़ाकर खुद को ज़ारून के शिकंजे से आज़ाद करवाने की कोशिश की, लेकिन वो एक मजबूत मर्द था और दानिया दुबली पतली नाजुक सी लड़की। कुछ देर की कोशिश के बाद वो थक कर रुक गई और ज़ारून के चेहरे को नफरत से देखने लगी। थोड़ी कोशिश और कर लीजिए जानेमन, आपको हारता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर ज़ारून उसे बाजुओं में जकड़े पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगा और ना चाहते हुए भी दानिया को अपने कदम उसके साथ मिलाने पड़े। चंद कदमों के फासले को तय करने के बाद दानिया बेड की साइड से टकरा कर रुकी। ज़ारून ने हल्का सा उसके सीने पर धक्का दिया और अगले ही लम्हे दानिया लड़खड़ा कर बेड पर गिरी। ज़ारून उस पर हावी होते हुए उसके लबों को नरमी से छू गया था। ज़ारून के लबों की गर्माहट को महसूस करते ही दानिया के वजूद से जान निकल गई। उसने सारी हिम्मत जमा करके ज़ोरदार धक्का ज़ारून को दिया और तेज़ी से उठ खड़ी हो गई। खबरदार, जो मेरे नज़दीक आने की कोशिश की, तुम्हारी जान ले लूँगी मैं अपने इन हाथों से। दानिया ने मेहंदी से रचे हाथ ज़ारून के आगे किए तो वो एक लम्हे के लिए पीछे हट गया। ये खुशबू वाकई ही नाकाबिले बर्दाश्त थी। चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरने लगे। इन हाथों को मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह पहचानता हूँ। आज भी मेरे गाल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान सख्त हैं और मेरे गाल से कहीं ज़्यादा मेरे वजूद, मेरी इज्जत पर। शुक्र करो कि तुम्हारे साथ बहुत तमीज़ से पेश आ रहा हूँ, वरना जो तुमने मेरे साथ किया था उसके बाद तो मुझे तुम पर ज़रा भी रहम नहीं करना चाहिए। दानिया बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगी। अब कुछ भी कहने या सुनने का फ़ायदा न था। वो वाकई उसका मजाजी खुदा बन चुका था और यही बात दानिया को मुस्तकिल परेशान कर रही थी। अगर उसका बाप बीमार ना होता तो वो उसी पल अपने घर वापस लौट जाती, लेकिन ये बाबा की बीमारी ही तो थी जिसकी वजह से उसने जल्दबाजी में लड़के को देखे और मिले बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और यही गलती सारी ज़िंदगी की सज़ा बनने वाली थी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस एक कमरे में नहीं रह सकती, मुझे अलहदा कमरा चाहिए। कुछ लम्हों बाद हिम्मत करते हुए उसने अलहदा कमरे की डिमांड की थी। ज़ारून की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। किसी होटल में ट्रिप के लिए आई हो जो तुम्हें अलहदा कमरा चाहिए? बीवी हो मेरी, एक ही कमरा होगा हमारा और एक ही बिस्तर भी। खबरदार जो दोबारा अलहदा कमरे या अलग बिस्तर की बात की। अभी तो इस रात की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ और बाकी है मिसेस ज़ारून गाजी। अपने नाम पर जोर देते हुए वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। दानिया ने उसकी पुश्त को देखते हुए अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। वो उसे रूनी के नाम से जानती थी। उसे ये इल्म ही ना था कि उसका असली नाम ज़ारून है। अगर उसे मालूम होता तो शायद रिश्ते के वक्त उसके जहन के किसी गोशे में माजी की कोई झलक लहरा जाती, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी ही उसे रूनी कहकर पुकारा करती और वो उसी नाम से मशहूर था, ज़ारून गाजी। ये नाम तो उसने आज पहली बार रूनी के लिए सुना था। वही रूनी जिसके मुंह पर तमाचा मारकर उसने सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसे जलील किया था। लेकिन ज़ारून गाजी और रूनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रूनी तो एक खामोश सहमा हुआ अंदर ही अंदर घुटता हुआ सा शख्स था, लेकिन ये ज़ारून गाजी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाएतमाद जहरीली आंखों से घूरता और जुमले चबोता हुआ मर्द। उन 2 सालों में किसी इंसान में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है?
वो जो कभी नज़र उठाकर बात ना कर पाता था, आज उसकी आंखों में आंखें डालकर धमकियां दे रहा था। दानिया वाकई ज़ारून के इस बदले हुए अंदाज पर शशदर रह गई। चंद लम्हों बाद ज़ारून पलट कर उसके करीब आया और एक पैकेट उसके सामने बढ़ा दिया। ये एक ख़ास तोहफ़ा है जो मैंने उस रात के लिए ख़रीदा था। उस वक्त नहीं जानता था कि मेरी बीवी दानिया शाह होगी, वरना शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा लेता, लेकिन ये भी तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी होगा। ज़ारून के लहजे में अब भी तल्खी और तंज नुमाया थे। दानिया ने हाथ आगे न बढ़ाया तो ज़ारून ने उसका हाथ खींचकर ज़बरदस्ती वो पैकेट थमा दिया। दानिया गुस्से से उसे घूरने लगी। क्या इरादा है? सारी रात यहीं खड़े खड़े गुजारोगी क्या? रात के 3 बजने वाले हैं, शाबाश, खोलो ये पैकेट। ज़ारून ने ज़बरदस्ती उससे पैकेट खुलवाया और पैकेट खोलने के बाद दानिया शर्म से पानी पानी हो गई। वो एक सुर्ख रंग की मुख्तसर नाइटी थी, बेहद नामुकम्मल और बेहिजाबी की हदों को छूती हुई। शर्म से चूर होते हुए बड़ी मुश्किल से दानिया ने ज़ारून के चेहरे पर नज़र डाली, जो बड़ी बेबाकी से उसे देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है ज़ारून गाजी, मैं ये नाइटी तुम्हारे लिए पहनूंगी? दानिया का लहजा जहर में बुझा हुआ था। न मैं उस शादी को मानती हूँ और न ही तुम्हें अपना शौहर। ये कहकर दानिया ने नाइटी उठाकर ज़मीन पर दे मारी और गुस्से से पैर पर टखती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ज़ारून खामोशी से उसे जाता देखता रहा। दानिया के जहर आलूद अंदाज ने उसके अंदर जैसे आग भड़का दी हो, मगर उसने चेहरे पर उभरने वाली मुस्कुराहट को दबने न दिया। नहीं, आज वो दानिया के सामने झुकने वाला न था। वो अब वो ज़ारून न था जो 2 साल पहले एक थप्पड़ खाकर यूनिवर्सिटी छोड़ बैठा था। आज दानिया शाह उसकी ज़िंदगी, उसकी दस्तरस में थी और वो ज़ारून गाजी उसका हाकिम। कितनी ही देर तक दानिया शॉवर के नीचे खड़ी पानी बहाती रही। आंखों से आंसू भी साथ साथ बह रहे थे। बाबा की तबीयत का मामला ना होता तो वो इसी वक्त वापस लौट जाती, लेकिन हार्ट अटैक के बाद मुजम्मिल शाह न सिर्फ बेहद कमज़ोर हो गए थे, बल्कि डॉक्टर्स ने ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि उन्हें किसी किस्म का जहनी दबाव न दिया जाए। ऐसे में वो किस तरह अपने बाबा को बताती कि ज़ारून गाजी कौन था? आधे घंटे तक वो यूं ही बेमकसद शॉवर के नीचे खड़ी रही, अपने अंदर सुलगती हुई आग को पानी से बुझाने की नाकाम कोशिश करती रही। ये तो तय था कि वो खुद को ज़ारून गाजी के हवाले नहीं कर सकती थी। उसने खुद से अहद किया था कि कुछ भी हो जाए वो ना तो उसे कोई हक देगी और ना ही अपनी ज़ात पर उसकी मलकियत तस्लीम करेगी। अपने आंसू पूंछते हुए उसने शॉवर बंद किया और अगले ही लम्हे जैसे उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई, जब उसे याद आया कि वो बगैर कपड़ों के ही वॉशरूम में आ गई थी। बेबसी के आलम में उसने मुट्ठियाँ भींच ली और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। शादी का भारी शरारा सामने टंगा हुआ था, लेकिन वो उसे दोबारा पहनकर बाहर नहीं जा सकती थी। अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि आखिर वो इतनी लापरवाही से कैसे अंदर आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक साइड पर रखे बाथ टॉवल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा और आहिस्तगी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। कमरे में झांका, ज़ारून कहीं पर भी नजर न आया तो दिल को कुछ सुकून मिला। दबे कदमों वो बाहर निकली। अब सिर्फ अलमारी तक पहुंचकर अपना जोड़ा निकालना था और फौरन वॉशरूम में जाना था और कमरे की लाइट मद्धम हो चुकी थी। शायद ज़ारून कमरे से बाहर जा चुका था और जाते जाते बड़ी लाइट बंद कर गया था। दिल ने तसल्ली दी और वो तेज़ी से अलमारी तक पहुंच गई। कबर्ड खोला और अपने लिए हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा निकाल लिया। आहिस्तगी से अलमारी बंद करते हुए वो पलटी ही थी कि उसका सांस सीने में ही अटक आया। दुश्मन जहाँ ज़ारून गाजी बिल्कुल उसके करीब खड़ा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। वो कब आया, कहाँ से आया, दानिया को कुछ खबर ना हुई। मैंने तो आपको नाइटी की पेशकश की थी, लेकिन आप तो बाथ टॉवल में ही आ गई। ऐसे भी बहुत हसीन लग रही हैं, ज़ारून ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा और फिर उसके हाथ से वो गुलाबी जोड़ा छीन कर एक तरफ फेंक दिया। मुझे नहीं लगता कि आज की रात उसकी भी कोई ज़रूरत है, उसने सर्द लहजे में कहा और अगले ही लम्हे दानिया को अपनी बाहों में उठा लिया। दानिया इस अचानक हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, इसीलिए बेखबरी में उसके बाजुओं में झूल गई। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? वो बेइख्तियार चिल्ला उठी। ज़ारून के चेहरे पर हनूस वही तल्ख मुस्कुराहट थी। पागल तो हूँ, तुमने ही तो सबके सामने कहा था कि मैं नफसियाती मरीज़ हूँ। याद है वो दिन जब पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुमने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे जहनी मरीज करार दिया था। उसके लहजे में एक अजीब सी टूट फूट थी। फिर मुझसे कैसे किसी अक्लमंदी की तवक्को रख सकती हो? कहते हुए वो बेड की जानिब बढ़ा और दानिया को बिस्तर पर डाल दिया। दानिया के हाथ चादर के साथ पिन करते वो उसके चेहरे पर झुकने लगा।
दानिया ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। माजी के चंद लम्हे तेजी से उसकी याददाश्तों में गर्दिश करने लगे। वो एक बहुत खूबसूरत दिन था। आसमान पर बादल ही बादल थे और किसी भी वक्त बारिश मुतवक्को थी। ऐसे में वो किसी भी तरह यूनिवर्सिटी की छुट्टी नहीं किया करती थी कि बारिश का असल मज़ा यूनिवर्सिटी के गार्डन में दोस्तों के साथ ही आया करता था। वो 9 बजे के करीब यूनिवर्सिटी पहुंच गई और पार्किंग में ही उसे उसके दोस्त भी मिल गए थे। शाजिया, जवेरिया, फरूख और वो पक्के दोस्त थे। ये यूनिवर्सिटी का पहला ही साल था, इसीलिए वो चारों ही बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को लेकर शौकीन थे। कॉलेज से एक साथ जुड़ने वाले ये चारों दोस्त यूनिवर्सिटी की खुली फिजाओं में आज़ाद पंछियों की तरह उड़ते फिरते। बारिश के मौसम में भी चारों एक दूसरे के साथ गार्डन में बैठे थे। दुआ करो यार बारिश हो जाए, बड़ा मज़ा आएगा। जवेरिया ने बेताबी से बारिश के लिए दुआएं मांगी। उसकी बात पर दानिया खिलखिलाकर हंसने लगी। अगर बारिश हो गई तो मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन वापसी में बड़ी परेशानी हो जाएगी। पता तो है ना कि रास्तों का क्या हाल हो जाता है। दानिया का घर यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा दूर था, इसीलिए उसे वापसी की फ़िक्र भी उतनी ही थी जितनी बारिश एंजॉय करने की खुशी। बारिश तो हो जाने दो, तुम्हें वापसी की फ़िक्र पड़ी है। ये बादल अक्सर धोखा देते हैं। फ़ारूक ने मुस्कुराते हुए अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखा, जो बारिश को लेकर हमेशा ही दीवानी रहा करती थी। वो लड़का देख रही हो दानिया, लास्ट ईयर में है वो। सुना है कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आधी यूनिवर्सिटी उसके नोट्स पर ऐश करती है। बेवकूफ़ सा लगता है। जवेरिया ने खुद से काफ़ी फासले पर बैठे रूनी की तरफ इशारा किया, जो अभी भी किताबें खोले पढ़ाई में मसरूफ़ था। रूनी है ना, इसी नाम से मशहूर है। असल नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने भी यही सुना है कि इसके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं और गेस्ट पेपर्स भी ज़बरदस्त बनाता है। तभी तो काफ़ी सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती नज़र आती हैं, लेकिन थोड़ा शर्मीला टाइप है। शायद कभी देखा नहीं किसी लड़की के साथ फ्री होते हुए। अपने काम से काम रखता है और कोई दोस्त यार भी नहीं, हमेशा अकेले ही नज़र आता है। फ़ारूक ने भी अपनी नॉलेज शेयर की। क्या हो गया है तुम लोगों को? हमें क्या लेना देना इस रूनी से? अजीब कुत्तों जैसा नाम है। वैसे भी जो इतना सीधा साधा और शरीफ दिखता है ना, वो इतना ही ज़्यादा कमीना होता है। लिख लो मेरी बात, ये हरगिज़ भी इतना शरीफ नहीं होगा। जानबूझकर लड़कियों को फंसाने के तरीके होते हैं ऐसे लड़कों के। दानिया ने मुंह बनाकर दूर बैठे उस लड़के को देखा, जो सर झुकाए किताबों में मसरूफ़ था। उसकी बात पर सभी दोस्त सर हाँ में हिलाकर रह गए और थोड़ी ही देर के बाद शिद्दत से बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ के सामने का मंजर धुंधला गया। वो जो कुछ देर पहले बारिश की दुआएं मांग रहे थे, अब उससे बचने के लिए पनाहगाह तलाश कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद वो कॉरिडोर में खड़े थे और बस बारिश को दूर से ही देख रहे थे। यार दानिया सोचा था बारिश एंजॉय करेंगे, ये तो बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। जवेरिया का मिजाज उस बारिश को देखकर ख़राब हो गया था। उसे बारिश भी पसंद थी, लेकिन इतनी तड़ाकेदार नहीं। मुझे लगता है कि हमें घर वापसी निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे रास्ते भी बंद मिलना शुरू हो जाएं। वैसे भी तकरीबन सभी लोग इस वक्त वापस घर जा रहे हैं, अब तो क्लासेस भी नहीं होनी। फ़ारूक ने उन तीनों को वापस चलने का कहा तो वो भी राज़ी हो गई। शाजिया और जवेरिया फ़ारूक के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती थी, इसीलिए उन्हें वापसी की ज़्यादा जल्दी थी, जबकि दानिया कुछ देर और ठहरना चाहती थी। उसे सर असलम से अपने असाइनमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। तुम तीनों चले जाओ, मैं बस सर असलम से अपना असाइनमेंट डिस्कस कर लूँ, फिर निकलती हूँ। और उसने उन तीनों को जाने दिया और कुछ कॉरिडोर पार करके सर असलम के ऑफिस के पास पहुँच गई। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिस के अंदर जाती, किसी की आवाज़ ने उसे रोका। पलट कर देखा तो वो रूनी था, जो तेज़ी से उसके नज़दीक चला आया। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तकरीबन सभी लड़कियाँ निकल चुकी हैं और आपको भी वापस जाना चाहिए। न जाने क्यों वो उसे मुखातिब हुआ था और उसे वापस जाने का कह रहा था। दानिया ने गुस्से से उसे घूरा। आप कौन होते हैं मुझे डिक्टेट करने वाले? मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है। अकेली लड़की देखी नहीं कि आ गई लाइन मारने। गुस्से से कहती वो सर असलम के कमरे में दाखिल हुई। उसे तो पहले ही यकीन था कि रूनी जो सीधा साधा दिखता था वो हरगिज़ भी शरीफ लड़का ना था, और अब तो साबित भी हो गया था कि उसे तन्हा देखते ही वो गिरता पड़ता उसके पास चला आया था। गुस्से में वहीं मुंह में बुड़बुड़ाते वो कमरे में दाखिल हुई तो उसे सर असलम कहीं नजर न आए, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त लाइट चली गई। शायद बारिश की वजह से ब्लैकआउट हुआ था। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया और उसे कुछ नजर न आने लगा। यहाँ वहाँ हाथ मारते वो आगे पीछे होने लगी और दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी।
लेकिन कौन अंदर आया था उसे अंदाज़ा ही ना हो सका। और इतने में अचानक ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर सख्ती से जकड़ लिया। इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाती, उसके मुंह पर भी सख्ती से हाथ जमा दिया गया और फिर उसे अपनी गर्दन पर दहकते अंगारे महसूस हुए। किसी ने अपने लबों से उसकी सांसों को छीना था। वो किसी पिंजरे में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी और दिल खौफ से पूरी तरह कांप रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को किस तरह से आज़ाद करवाए। सर असलम का ऑफिस वैसे भी सबसे अलग हट कर बना हुआ था और उस तरफ तो लोगों का रश भी ना था। फिर अचानक उसके जहन में रोने का तस्वर उभरा। वही तो था जो उसके पीछे यहाँ तक आया था। शायद उसे मालूम था कि सर असलम कमरे में ना थे। उसने पेपर वेट उठाकर तेजी से अपने पीछे खड़े शख्स के सर पर दे मारा। लम्हे की अज़ियत में उस इंसान ने दानिया को छोड़ा और दानिया गिरते पड़ते बाहर की तरफ दौड़ी। कमरे से निकलते ही रोशनी ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया। वो बस तेजी से आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और फिर कॉरिडोर के खुले हिस्से में आकर उसने ठहर कर गहरे गहरे सांस लेना शुरू किए। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ था। वो खौफज़दा नज़रों से यहाँ वहाँ देख रही थी। लड़कियाँ तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन काफ़ी सारे लड़के इर्द गिर्द मौजूद थे जो शायद वापसी के लिए ही निकल रहे थे। वो अपने सीने पर हाथ रखे अपनी धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो सांस सीने में ही अटक आया। वो रूनी था जो सर असलम के कमरे की तरफ से ही आ रहा था। चंद सेकंड्स में ही उसके दिमाग ने फैसला कर लिया कि वो रूनी ही था जिसने मौके का फ़ायदा उठाया। वही इंसान जो दुनिया को सीधा साधा नज़र आता था, उसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उसे इस्तेमाल करना चाहता था। रूनी जैसे ही उसके नज़दीक आया, बिना सोचे समझे दानिया ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। बेशर्म बेहया इंसान! उसने इतनी ज़ोर से रूनी का गिरेबान खींचा कि 2 बटन टूट गए और रूनी हक्का बक्का से उसे देख रहा था। क्या हो गया है मैडम आपको? ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं। सर असलम के कमरे में जो तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद तुम्हें ये शराफत का लिबादा ओढ़ने की क्या ज़रूरत है? उसके गिरेबान को नोचते दानिया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। इर्द गिर्द मौजूद स्टूडेंट्स उसकी आवाज़ पर पहले ही जमा हो चुके थे और अब उस थप्पड़ के बाद तो रश में और इजाफा हो गया। लेकिन दानिया रुकी ना। उसने एक और तमाचा रूनी के मुंह पर दे मारा और इस बार ये तमाचा देखने के लिए वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। रूनी ने बड़ी तेज़ी से अपना गिरेबान दानिया से आज़ाद करवाया। क्या मसला है आपके साथ? आप औरत हैं इसीलिए मैं एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाएं। गुस्से और नफरत से कहता वो यकदम पीछे हुआ तो दानिया ने उसके चेहरे पर थूक दिया। अपना ये शराफत का ढोंग अपने पास रखो और आप सभी अच्छी तरह सुन ले। ये जो इतना शरीफ नज़र आता है ना, ये इंतहाई बेगैरत और बेज़मीर मर्द है। इसने मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। दानिया के अल्फाज पर वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए, जबकि कुछ ऐसा ही हाल रूनी का भी था। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? किस किस्म की फजूल बातें कर रही हैं? मैंने तो कहा था कि आपसे मौसम ठीक नहीं है और आप अपने घर जाएं। रूनी खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पहले हमदर्दी का दिखावा इसीलिए किया था कि जब बाद में मेरी इज्जत पर हमला करें तो मैं आपको कसूरवार न ठहराऊं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपने किया है। अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए उसने रूनी और बाकी लोगों को भी वो नीला निशान दिखाया, जिसे देखने के बाद लोगों में बेचैनी सिरायत कर गई। सब लड़के आपस में सरगोशियाँ करते हुए रूनी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। रूनी की आंखों में शर्मिंदगी के साथ साथ बेयकीनी भी धर आई। वो लड़की उस पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो चाहकर भी किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आपको कोई गलत फहमी हो गई है मैडम? वो बहुत आहिस्तगी से बोला, जैसे उसके अल्फाज भी थर थर आ रहे हों। हर किसी की नजरें उसके वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थी। गलत फहमी और मुझे? मैं पुलिस को बुलाती हूँ ताकि अभी पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत। पुलिस के नाम पर रूनी की आंखों में बेचैनी की वाज़ेह तासुरात उभर आए। वो जानता था कि ये बदनामी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसकी 2 बहनें थी जिनका वो वाहिद सहारा था। बाप के इंतकाल के बाद उसने ही घर संभाला था और बाबा के छोड़े हुए छोटे से कारोबार को चलाते हुए वो पढ़ाई भी कर रहा था ताकि अपनी बहनों को अच्छा मुस्तकबिल दे सके, उनकी इज्जत के साथ साथ शादियाँ कर सके। लेकिन अगर उस पर कोई केस बन जाता, चाहे झूठा ही क्यों ना हो, तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती बल्कि उसकी बहनों का मुस्तकबिल भी अंधेरों में डूब जाता। इसीलिए उसने फ़ौरन मुदाखलत की। नरमी से बोलने की कोशिश करते हुए कहा कि देखिए मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया और न ही मैं सर असलम के कमरे में गया था।
مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں، پلیز پولیس کو مت بلائیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولا، لیکن دانیہ کی آنکھوں میں اس وقت شعلے بھڑک رہے تھے۔ جانتے ہو نا کہ اگر پولیس آئے گی تو تمہارا گناہ کھل جائے گا، اسی لیے بچنا چاہتے ہو، لیکن میں اتنی آسانی سے یہ معاملہ جانے نہیں دوں گی۔ یہ میری عزت کی بات ہے اور ساتھ ہی ہماری یونیورسٹی کے وقار کی بھی۔ وہ اپنا موبائل نکال کر پولیس کو کال ملانے ہی والی تھی کہ اچانک سر اسلم بھی بھیڑ دیکھ کر ان کے پاس آ گئے۔ جیسے ہی انہیں سارے معاملے کا پتہ چلا، انہوں نے فوراً مداخلت کی۔ پلیز دانیہ، پولیس کو انوالو مت کرے، یونیورسٹی بدنام ہوگی اور اس معاملے کو میں خود ہینڈل کر لوں گا، آپ ابھی گھر جائیں۔ انہوں نے زبردستی دانیہ کو وہاں سے ہٹایا اور گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا، مگر اس وقت تک رونی اپنے دل پر بیتی قیامت کو جھیل چکا تھا۔ لوگوں کی نظریں اس کی روح کو چھلنی کر چکی تھی۔ آپ میرے کمرے میں چلیں، سر اسلم نے نرمی سے کہا، مگر رونی بنا ان کی طرف دیکھے تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر دانیہ پر ڈالی جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج اس کی پوری یونیورسٹی میں بنائی ہوئی ساکھ برباد ہو گئی تھی۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا کہ وہ اب خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس دن گھر جا کر وہ کئی گھنٹوں تک روتا رہا اور پھر اس نے ایک پختہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ یونیورسٹی نہیں جائے گا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں سے الگ تھلگ اپنے خول میں رہنے والا انسان تھا، دنیا کی نظروں میں اپنے لیے ایسی گندگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ کئی دن یونیورسٹی نہ آیا تو ہر طرف یہی بات پھیل گئی کہ وہی مجرم تھا۔ دانیہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ رونی ہی اصل کلپریٹ تھا جس نے اس کی عزت پر ہار ڈالنے کی کوشش کی۔ رونی نے دوبارہ یونیورسٹی کا رخ نہ کیا اور دانیہ نے سکون سے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ 2 سال کا ایک ڈپلومہ تھا جس سے پورا کرتے ہی وہ آگے جاب کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے بابا کو اسی دوران ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے اپنی مرضی سے دانیہ کا رشتہ پکا کر دیا، ساتھ ہی اسے یقین دلایا کہ وہ شادی کے بعد بھی نوکری کر سکتی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا اور اسی ایک شرط پر اس نے اپنے بابا کے کہنے پر شادی کر لی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس پر اس نے اپنی عزت کو لوٹنے کا الزام لگایا تھا وہ خود کو اسی کے حوالے کر رہی ہے۔ ہاتھوں پر پڑتے ہوئے دباؤ نے دانیہ کو ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا تھا اور رونی نہ صرف اس کے بے انتہا قریب تھا بلکہ اپنے لبوں سے اس کی نرمی کو سمیٹ رہا تھا۔ دانیہ ایک بار پھر بے چین ہو کر پھڑ پھڑانے لگی۔ میں نے اس دن بھی تمہیں ٹھیک سمجھا تھا اور آج بھی وہی سمجھتی ہوں، اور تم ایک وحشی درندے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ تب بھی تم نے میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور آج بھی میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ دبے دبے لہجے میں گراتے ہوئے دانیہ نے رونی پر اپنے لفظوں سے حملہ کیا تھا۔ ماضی کا ذکر سنتے ہی وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور اسے چھوڑتے ہوئے اس نے کافی فاصلہ بنا لیا تھا۔ خبردار جو مجھ پر دوبارہ غلط الزام لگانے کی کوشش کی۔ نہ اس دن میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا اور نہ ہی آج کچھ غلط کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں نہیں تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، لیکن تم نے مجھ پر جھوٹا اور سنگین الزام لگایا جس کی وجہ سے میری پڑھائی چھوٹ گئی۔ اس بات کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا، لیکن رہی بات میرے وحشی ہونے کی تو جان لو کہ میں کوئی وحشی درندہ نہیں ہوں۔ میں ایک عام انسان ہوں اور ایک شریف النفس مرد جو عورت کو ہوس کی نہیں بلکہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے زارون کمرے سے باہر نکل گیا اور جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کر گیا۔ اس کے جاتے ہی دانیہ نے گہرے گہرے سانس لیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی اٹھا کر گھونٹ گھونٹ کر کے حلق سے اتارا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کسی طور پر یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ یونیورسٹی میں اس پر حملہ کرنے والا شخص زارون نہ تھا، کیونکہ اس وقت وہاں اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تو پھر بھلا وہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اسے پختہ یقین تھا کہ زارون ہی وہ شخص تھا اور اب وہ اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی روز کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی وہ کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ دوسری طرف زارون ساری رات یوں ہی گارڈن میں ٹہلتا رہا اور اس کے دل میں ایک سلگتا ہوا انگارہ جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دانیہ اسے قصوروار سمجھتی ہے، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ تو صرف اسے اس کمرے میں جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے محسوس ہوتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا۔ اس نے پہلے بھی کچھ لڑکیوں کو اس کمرے سے بدحواس ہو کر نکلتے دیکھا تھا اور ان کے پیچھے کچھ ہی دیر بعد سر اسلم کو بھی کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لڑکیوں کی بدحواسی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اسی لیے اس دن جب بارش ہو رہی تھی وہ دانیہ کو اس کمرے میں جانے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی کہ اس نے دانیہ کے ساتھ ہمدردی کی۔
वो बगैर मुकम्मल सच जाने सर असलम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता था, मगर दिल के किसी न किसी कोने में उसे यकीन था कि सर असलम की नीयत में ज़रूर खोट है। हर गुजरते पल के साथ ज़रून का दम घुटने लगा। वो यूं ही फजर तक यहाँ वहाँ टहलता रहा और फिर लाइब्रेरी में जाकर सो गया। उसकी दोनों बहनें, जिनकी कुछ महीनों पहले ही उसने एक साथ शादी की थी, उसकी शादी पर रहने के लिए आई थी और वो उनकी निगाहों का मरकज़ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए उसने खामोशी से ख़ुद को लाइब्रेरी में बंद कर लिया और फिर सुबह सबके उठने से पहले ही वो घर से बाहर निकल गया। सुबह के 10 बजने के करीब दानिया की आंख खुली तो वो कमरे में तन्हा ही थी। उसने उठकर एक नज़र सारे कमरे पर डाली और फिर फ्रेश होकर निकली। खुद को हल्का फुल्का तैयार किया। इतने में उसकी दोनों नंदें कमरे का दरवाज़ा नॉक करती अंदर चली गई। सादिया और सिद्रा दोनों ही बहुत प्यारी और सादा सी लड़कियां थीं, जो अपनी भाभी के आने पर बेइंतहा खुश थीं। भाभी, भाई कहाँ हैं? उन दोनों ने हैरत से सवाल किया और दानिया गड़बड़ा गई। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उसने बस आहिस्तगी से मुख्तसर जवाब दिया। वो उन दोनों लड़कियों के साथ बिल्कुल भी रूड नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उनके चेहरे पर जो सादगी और मासूमियत थी वो बहुत ही मुख्तलिफ और प्यारी थी। भाभी, आपको पता है कि हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। बाबा के जाने के बाद उन्होंने ना सिर्फ हम दोनों को पढ़ाया, बल्कि हम दोनों को एक साथ ही रुखसत भी किया। हम दोनों एक ही घर में शादी होकर गई हैं। देवरानी और जेठानी का रिश्ता है हमारा। छोटी सिद्रा ने मुस्कुराते हुए अपनी नई नवेली भाभी को अपने और घर के बारे में बताना शुरू किया। दानिया खामोशी से अपनी नंदों की बातें सुन रही थी। पता है भाभी, भाई अपनी डिग्री मुकम्मल करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन खामोशी से उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उस दिन भाई बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और कई दिन तक उन्होंने किसी से कोई बात भी नहीं की थी, बस अपने कमरे में बंद रहते थे। लेकिन आज भी वो जब भी स्टडी रूम में जाते हैं तो उनकी आंखों में अलग ही चमक होती है। आप भाई को दोबारा पढ़ने के लिए राज़ी करें ना। हम चाहते हैं कि हमारे भाई अपने हर अधूरे ख्वाब को पूरा करें। हमने और मामा ने कई बार जानने की कोशिश की कि भाई ने पढ़ाई क्यों छोड़ी, लेकिन भाई ने कभी बताया ही नहीं। मामा भी यही चाहती हैं कि भाई अपनी डिग्री मुकम्मल करें, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और अब तो आप आ गई हैं ना, आप भी हमारे साथ मिलकर भाई को राज़ी करेंगी। उन दोनों की बात पर दानिया हैरान रह गई। अगर तुम्हारे भाई को इतना शौक था पढ़ाई का, तो फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ी क्यों? उसने जानबूझकर सवाल किया था। पता नहीं भाभी, बस कुछ हो गया था, लेकिन क्या, ये हम में से किसी को नहीं पता। अलबत्ता भाई बहुत दिन तक डिस्टर्ब रहते थे। कभी कभी तो वो खाना भी नहीं खाते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुए और उन्होंने बाबा का बिजनेस संभाल लिया। अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की और अपने तमाम फर्ज अदा कर दिए। लेकिन कहीं न कहीं पढ़ाई का शौक अब भी उनके अंदर है। आपको पता है, सारी यूनिवर्सिटी उनसे नोट्स बनवाती थी और वो बिना किसी से पैसे लिए या फिर नखरे दिखाए सबके काम आया करते थे। सादिया की बात पर दानिया को चुप सी लग गई, जैसे उससे कोई गलती हो गई हो। चले भाभी, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, अभी नाश्ते के लिए चलते हैं। दोनों ही दानिया का हाथ पकड़े उसे नाश्ते की टेबल पर ले गई, जहाँ पहले से ही वो दुश्मन जहाँ आकर बैठा था। दानिया से नजरें चुराते वो नाश्ते पर तवज्जो देने लगा। दानिया ने गौर से उसके चेहरे को देखा। आंखों की सुर्खी उसके रत जगह का एहसास दिला रही थी। मुझे कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना होगा और शायद 15-20 दिन बाद वापस आऊं। नाश्ता ख़त्म करते ही ज़ारू ने अपने जाने की खबर सुनाई और उसकी मामा और बहनें हैरान रह गई। भाई, अभी तो शादी हुई है आपकी और आपको छुट्टियां लेनी थी ना। इस तरह भाभी को छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं, वो भी 15 दिन के लिए। उसकी बहनें उससे नाराज़ हो रही थी। मेरा जाना ज़रूरी है और अचानक से ही कुछ काम आ गया है, और फिर तुम दोनों हो ना अपनी भाभी के साथ। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम दोनों आराम से यहीं रहोगी। बहनों को कहते हुए वो बिना दानिया पर नजर डाले कमरे की तरफ चला गया और वो कितनी ही देर खामोशी से बैठी रही तो वो उसे आज़ाद छोड़ने को तैयार था। दिल ने सुकून लेने की बजाय उसे बेचैन किया। वो ऐसे कैसे जा सकता था, वो भी 15 दिन के लिए। उसे तो लगा था कि वो उससे बदला लेगा और हर उस थप्पड़ का जो दानिया ने उसे लगाया था, मगर वो बहुत आसानी से पीछे हट गया। क्या वो वाकई ही एक शरीफ नफ्स मर्द था? दानिया ने खुद ही अपना सर झटक दिया और अच्छा बनने की जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। वो दिल ही दिल में उसे फिर कोसने लगी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद वो कुछ देर तक नंदों के साथ बैठी रही और फिर जब कमरे में वापस लौटी तो दरवाजे पर ही उसके कदम ठहर गए। ज़रून अपना सामान पैक कर चुका था, बस बैग को जिप लॉक कर रहा था और दानिया पर नज़र पड़ते ही उसने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया।
تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم خود کو پارسا ثابت کر دو گے؟ میں جانتی ہوں کہ تم ہی میرے گنہگار تھے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ماضی کے زخم یاد دلانے لگی۔ دانیہ، جس دن تمہیں سچائی پتہ چلے گی شاید اس دن تم خود سے نظر نہ ملا سکو۔ میں تمہیں زور اور زبردستی سے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح تم اپنے بابا کی وجہ سے یہ رشتہ نبھانے پر مجبور ہو، بالکل اسی طرح میں بھی اپنی بہنوں اور اپنی ماما کی وجہ سے اس رشتے سے بننے پر مجبور ہوں۔ سو بہتر یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے راستے چلیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تم بھی بار بار ماضی دہرا کر میرے اندر کے وحشی جانور کو جگانے کی کوشش نہ کرو۔ بس کچھ دن گزر جانے دو اور میں کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ میرے واپس آنے تک انتظار کرو۔ میں جب واپس آؤں گا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں خود تمہیں اس رشتے سے فارغ کر دوں گا۔ سختی سے اسے تاکید کرتے ہوئے اپنا بیگ لے کر وہ نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد دانیہ خالی کمرے میں کھڑی رہ گئی۔ ایسا لگا تھا جیسے پل بھر میں اس کا دل خالی ہوا ہو۔ شاید یہ نکاح جیسے تعلق کی طاقت تھی کہ وہ اپنے آپ کو زارون کے ساتھ بندھا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زارون کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اس کی روح کو کچوکے لگا رہے تھے۔ کیا واپس آ کر واقعی وہ اسے طلاق دینے والا تھا؟ زارون کے جانے کے بعد دن تیزی سے گزرنے لگے اور اس نے اس نئے گھر میں اپنا دل لگا لیا تھا۔ اس کی دونوں نندیں اس کے ساتھ بہت ہی اچھی تھی۔ وہ اپنے گھر کے بھی کئی چکر لگا چکی تھی اور اس کے بابا اس کی شادی کے بعد بے انتہا خوش تھے اور خود کو صحت مند محسوس کر رہے تھے۔ بس یہی بات اسے خوش کرنے کے لیے کافی تھی اور پھر دھیرے دھیرے 10 دن گزر گئے۔ کمرے کی تنہائی اور زارون کی غیر موجودگی کبھی بھی اسے بے چین کر دیتی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی زارون سے طلاق نہیں لے گی کیونکہ اس کے بابا کی صحت کافی بہتر ہو رہی تھی اور وہ اپنی طلاق سے دوبارہ انہیں کوئی ذہنی تناؤ نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر ایک بات اس کے دل پر کاری ضرب کی طرح تھی اور وہ زارون کی بے رخی، خاص کر اس وقت جب وہ اپنی بہنوں اور ماں کو فون کرتا لیکن نہ ہی اس سے بات کرتا اور نہ ہی اسے کوئی فون کرتا۔ کیا وہ زارون کے لیے بالکل بے وقت تھی یا پھر وہ جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہا تھا؟ وہ اپنی بے چینی کو زارون کے آگے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی اور پھر اس پر وہ سچ کھلا جس نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اس کے بابا کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے چاچا کی بیٹی رمشا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یونیورسٹی کے کسی پروفیسر اسلم نے رمشا کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کی حالت اب بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ سر اسلم کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کیا لیکن کسی نے بھی ان کے خلاف زبان نہ کھولی۔ سر اسلم کو پولیس ریمانڈ پر رکھا گیا ہے اور یہ سن کر دانیہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ماضی کے وہ پل اس کی آنکھوں کے آگے لہرانے لگے۔ وہ تاریک کمرہ اور کسی کا اسے کس کر پکڑ لینا اور اس کا منہ دبانا، اپنی شدتوں کو اس پر نچھاور کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ وقت پر پیپر ویٹ سر پر مار کر اس شخص سے خود کو نہ بچاتی تو شاید اس کا حال بھی رمشا جیسا ہوتا۔ تو کیا وہ زارون نہیں بلکہ سر اسلم ہی تھے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اس سے اس کی سانسیں چھین لی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھتی چلی گئی اور فون ہاتھ سے گر چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سامنے دیوار پر لگی بڑی سی زارون کی تصویر جیسے اس پر ہنس رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی ذہنی حیثیت کے بعد اس نے اپنے ہوش کھوئے تھے اور اسے کچھ یاد نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کے بستر پر تھی۔ زارون اس کے سامنے کھڑا پریشان تھا اور اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ فوراً ہی نزدیک آ گیا۔ تم ٹھیک ہو دانیہ؟ دانیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بے چینی سے سوال کر رہا تھا اور دانیہ بس بے چینی سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ میں نے ڈائیورس پیپرز ریڈی کروا لیے ہیں۔ میں تم پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا اور کوئی بھی آنچ آئے بغیر اس رشتے کو ختم کر دوں گا۔ تم اپنے بابا کی یا میرے گھر والوں کی فکر نہ کرو۔ جو کچھ بھی ہوگا اس سب کی ذمہ داری میرے سر ہوگی۔ تم پلیز ٹینشن مت لو۔ آہستگی سے کہتے زارون کے لہجے میں نمی کھلنے لگی۔ شاید دل پر پتھر رکھتے وہ ایک بار پھر دانیہ کی خاطر خود کو ذلیل کرنے کے لیے تیار تھا۔ دانیہ نے گھبرا کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں زارون پلیز، ڈائیورس نہیں چاہیے مجھے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی اور زارون حیران رہ گیا۔ مجھ جیسے وحشی درندے کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارو گی؟ دھیمے لہجے میں کہتے اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں جان گئی ہوں کہ وہ تم نہیں تھے، وہ سر اسلم تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ سچائی جان چکی تھی۔ زارون جو اس کی بے ہوشی کی خبر ملنے کے بعد دوسرے شہر سے واپس لوٹا تھا، اس بات سے انجان تھا کہ سر اسلم کا سچ دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بس حیرت اور پریشانی سے دانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ سر اسلم اریسٹ ہو گئے ہیں،
जो कुछ उन्होंने किया वो सब कुछ अब दुनिया को पता चल चुका है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो समझ ना सकी, और तुम तो मुझे उस दिन उनके कमरे में जाने से भी रोकना चाहते थे। मैंने तुम्हें ही कसूरवार ठहरा दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो रोते हुए हाथ जोड़े उससे माफ़ी की तलबगार थी। ज़ारून तो पहले ही दिल के हाथों मजबूर था, और इसीलिए तो उसने तलाक देने का फ़ैसला किया था कि वो मज़ीद दानिया को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। उसके जुड़े हाथों को फ़ौरन अपने हाथों में पकड़ते ज़ारून ने लबों से लगा लिया। मुझे अंदाज़ा था कि सर असलम ही गुनहगार हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ना था। फिर तुम भी तो कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। और अब तुम सच्चाई जान चुकी हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पहले से ही मालूम था कि वही एक बदनीयत मर्द है। दानिया की आंखों में आंखें डाले वो अपनी सच्चाई और अपनी बेगुनाही का एतराफ़ कर रहा था। दानिया उसके सीने से लगी आंसू बहाने लगी। डॉक्टर चेकअप के लिए कमरे में आई और फिर उसने दानिया को डिस्चार्ज कर दिया। ज़ारून दानिया को लेकर घर पहुंचा तो ज़ारून की बहनों ने बड़ी खुशदिली से फूलों के साथ दानिया का इस्तकबाल किया। वो उन दोनों की इस पुरखुलूस मोहब्बत पर हैरान रह गई। वो दोनों बिल्कुल अपने भाई जैसी ही थी, और वो भाई बहन बिल्कुल अपनी मामा जैसी मोहब्बत करने वाले और सादा से लोग थे। दानिया ने मोहब्बत से उन दोनों को गले लगाया और फिर अपनी सास के हाथों को चूम लिया। काफ़ी अरसा पहले उसने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन ज़ारून की बदौलत आज उसे फिर अपनी मामा वापस मिल गई। सर असलम के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत मिले थे, जिनकी बदौलत उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। धीरे धीरे रिमशा की हालत बेहतर हो रही थी, और दानिया ने भी कई बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर उसे हौसला दिया, लेकिन जब जब वो हॉस्पिटल से वापस लौटती तो सारा रास्ता आंसू बहाती और खुदा का लाख शुक्र अदा करती कि उस दिन वो महफूज रह गई थी। उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ था, और जैसा कि रिमशा के साथ हुआ था। उसकी दोनों नंदे वापस अपने ससुराल लौट चुकी थी, और अब वो अपने घर में मलिका की हैसियत हासिल कर चुकी थी। ज़ारून उससे पूरी तरह से वारिफ्ता था, और सास उसे सर का ताज बना चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी पर बेइंतहा खुश थी, और उसने खुदा से जो नहीं भी मांगा था वो भी उसकी झोली में आ गया था। ज़ारून जैसा मोहब्बत करने वाला मासूम हमसफ़र उसके नसीब में था, उसे और क्या चाहिए था। फिर उसने धीरे धीरे ज़ारून को आगे पढ़ने के लिए राज़ी कर लिया। वो चाहती थी कि उसकी जो पढ़ाई अधूरी रह गई वो दोबारा से मुकम्मल हो जाए। वो ज़ारून के ख्वाबों को पूरा करने में उसका साथ देने लगी, और फिर उनकी ज़िंदगी में वो दिन आया जब ज़ारून की डिग्री मुकम्मल हुई और सर पर काली टोपी और काला कोट पहने उसने मुस्कुराते हुए दानिया को गले से लगा लिया। दानिया के हाथों पर मेहंदी रची हुई थी और उस पर ज़ारून का नाम था, लेकिन आज ज़ारून को न मेहंदी की खुशबू बुरी लगी और न ही अबकाई आई थी, बल्कि वो बहुत खुशी से उस मेहंदी में रचे हुए अपने नाम को देख रहा था। ज़िंदगी न सिर्फ मुकम्मल हुई थी बल्कि एक खूबसूरत रास्ते पर चल चुकी थी, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह कबूल कर लिया था। तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साथ कभी कभी हम अनजाने में किसी इंसान को ऐसी तकलीफ पहुंचा देते हैं कि जिसका शायद हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन हमारे चंद लफ्ज़ उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। दानिया के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से ज़ारून ने अपनी पढ़ाई तक अधूरी छोड़ी। दुनिया की नज़रों में वो रुस्वा हुआ था, और जबकि उन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई न थी। आज की दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान पर इसी तरह से इल्ज़ाम तराशी करने लगा है, और बिना सच जाने हम कोई बोर्ड वॉरियर बने हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें किसी को भी बुरा भला कहने से पहले उसके हिस्से का सच जान लेना चाहिए? ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज सांप के जहर से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए सोच समझ कर अपने अल्फाज का चुनाव कीजिए, किसी पर बहतान न बांधिए और वक्त रहते अपनी गलतियों का असाला कीजिए।